Assalamu alaikum, my beloved learners. Today we are going to solve the brainstorming of on saying please. You know that we have completed this lesson making into three parts. I hope that you have understood well. Now we are going to solve the brainstorming of it. This video will be very beneficial for you because it has a very useful knowledge not only for the examination point of view but also for the improvement of English. In this video you will learn the expression of new words with example, the expression of don'ts and do's. You will learn the appropriate use of expression while facing the interview. You will be able to learn the discussion on the given topic. You will learn in this video the correct use of preposition, active voice and passive voice, suffixes and prefixes, collocation. I have given you the speeches, courtesy is the light of life, manners maketh man. All the activities from A1 to A7 I have solved. So you must note down all the activities and post in the Fateh group. I solicit you to subscribe my channel, to like my channel and to comment on it. Thank you. Let's watch the entire video and enjoy it. लेसन 1.2 ऑन सेइंग प्लीज का ब्रेन स्टॉर्मिंग हम हल करने जा रहे हैं। इसे लिखा है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। इस सबक को हम पूरा अच्छी तरह समझ चुके हैं। दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम किया था। आप उस वीडियो को देख चुके हैं। तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग हम हल करने जा रहे हैं। लेट्स सॉल्व। A1 फॉर्म ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स विथ एग्जाम्पल। ग्रुप बनाइए और एग्जाम्पल के साथ अल्फाज की तशरीह कीजिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। तुम अपने उस्ताद की मदद ले सकते हो। पहला वर्ड है जिसे हमको एक्सप्लेन करना है, ह्यूमिलिटी। इसके मायने उर्दू में होते हैं आजिज़ी और हिंदी में होते हैं विनम्रता। मोडेस्ट और लो व्यूज ऑफ वंस इम्पॉर्टेंट। इसकी एग्जाम्पल है वी शुड ट्रीट पीपल विथ ह्यूमिलिटी। हमने लोगों से आजिज़ी के साथ पेश आना चाहिए। दूसरा वर्ड है सेल्फ इस्टीम, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी खुद की इज्जत। हम उसी वक्त खुद की इज्जत कर सकते हैं जब हम अच्छे काम करें। गुड सेल्फ इस्टीम इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर अ हैप्पी लाइफ। गुड सेल्फ इस्टीम जो है एक कंडीशन है, एक शर्त है खुशगवार ज़िंदगी के लिए। प्री रिक्विजिट के मानी होते हैं शर्त। ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल, शुक्रगुजारी। ग्रैटिट्यूड इज द फेयरेस्ट ब्लॉसम विच स्प्रिंग्स फ्रॉम द सोल। एक खूबसूरत फूल है शुक्रगुजारी, जो हमारे रूह में खिलता है। कर्टेसी, पोलाइटनेस, यानी खुश अखलाकी। एवरीवन शुड ट्रीट ईच अदर विथ कर्टेसी। हर एक ने एक दूसरे के साथ खुश अखलाकी से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है जेनरोसिटी, विलिंगनेस टू गिव, सखावत। जेनरोसिटी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जेनरोसिटी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, असराफ है। अगला वर्ड है सिंपैथी, पिटी, सहानुभूति, हमदर्दी। आई हैव सिंपैथी विथ यू, मुझे आपसे हमदर्दी है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैथी। इसकी भी मायने होती है हमदर्दी और सहानुभूति। लेकिन then the question is arised, what is the difference between sympathy and empathy? Empathy is stronger than sympathy because sympathy is just a feelings of pity, एक किस्म की हमदर्दी होती है। लेकिन empathy जो होती है उस जगह को महसूस करना जहाँ जिसके साथ हम हमदर्दी कर रहे हैं, या उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करना, इसको empathy कहते हैं। A2 read the text and state whether the following statements are true or false. Correct the false statements. A. Bitter problems in a day-to-day life can be solved by sweet words. It is true. यहाँ उदी लाइन में हमने टी लिखा है ट्रू के बजाय। B. Great words could have been avoided by a little courtesy. It is also true. C. Observance of etiquette in a normal situation is important.
but more important is their observance when the situation is adverse. It is also true. D. Words like please and thank you help us in making our passage through life uneasy. It is false. अब इसको करेक्ट करेंगे हम. Words like please and thank you help us in making our passage through easy. E. The law permits anybody to use violence if another person is discourteous. It is incorrect. It is false. The law does not permit anybody to use violence if another person is discourteous. Select the most appropriate sentences which suggest the theme of the essay. Appropriate sentence यानी मुनासिब sentences इसमें से आपको मुंतखब करना है जो essay की थीम को सजेस्ट करते हैं. The essay tells us about the courtesy, civility, morality, responsibility and control. It is an appropriate sentence. The essay explores the difficulties that can be incurred by an individual when dealing with the public. One can keep one's peace of mind without having to lower themselves to the level of perceived offender. It is an appropriate sentence. People with low self-esteem are generally difficult to work with and they look down upon others to get a feeling of superiority. It is not appropriate. Find the reasons for the liftman's uncivilized behavior. लिफ्टमैन के बुरे बर्ताव की वजूहात बताइए. The passenger did not say to the liftman, "Top, please." So the liftman felt slur upon his respect and he threw the passenger out of the lift. पैसेंजर ने लिफ्टमैन को टॉप प्लीज नहीं कहा और उसने अपने रेस्पेक्ट पर एक कलंक महसूस किया और उसने पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया. लिस्ट द पीपल एंड देयर बिहेवियर दैट मेड द पैसेंजर रूड एंड इल मैनर्ड. लोगों के और उनके बर्ताव की फहरिस्त बनाइए जिसने पैसेंजर को नाशाइस्ता और इल मैनर्ड बना दिया था. हाउसमेट ने वाइफ के साथ बुरा बर्ताव किया, एम्प्लॉयर की वाइफ के साथ बुरा बर्ताव किया, फिर वाइफ ने एम्प्लॉयर के साथ बुरा बर्ताव किया, एम्प्लॉयर ने पैसेंजर के साथ बुरा बर्ताव किया, पैसेंजर ने लिफ्टमैन के साथ बुरा बर्ताव किया और फिर लिफ्टमैन ने पैसेंजर के साथ बुरा बर्ताव किया. यहाँ पर एम्प्लॉयर हस्बैंड है और वही हस्बैंड फिर पैसेंजर बनकर आता है. इस तरह से एक चैन इल मैनर्ड स्प्रेड होता है. गुड मैनर्स आर रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर मेकिंग आवर सोशल कॉन्टेक्ट्स मोर कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली. इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ द पोलाइट कंडक्टर विद डिफरेंट पीपल इन वेरियस सिचुएशंस. अच्छे अखलाक की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है सोशल कॉन्टेक्ट बढ़ाने में, दोस्ताना रवैये बढ़ाने में, दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने में. तो ऐसे ही बिहेवियर को बयान करना है पोलाइट कंडक्टर के, जो वो लोगों के साथ अलग अलग सिचुएशन में क्या करता था. तो सिचुएशंस यहाँ दी गई है कि वो बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ कैसा बर्ताव करता था. यहाँ एक एग्जाम्पल भी दी गई है हल करके. सिचुएशंस ऐसी है. द राइटर्स सेंसिटिव टो वाज ट्रैम्पल्ड ऑन. राइटर का सास टो या अंगूठा कुचल दिया गया था. उस वक्त कंडक्टर ने क्या किया था. द कंडक्टर सेड सॉरी विथ एन एपोलॉजी एंड कर्टेसी. तो कंडक्टर ने सॉरी कहा था और खुश इखलाक़ से जवाब दिया था. इन द रेनी सीजन डीलिंग विथ पीपल. मौसम में बरसात में वो क्या किया करता था बस में. ही वुड रन अपस्टेयर्स टू गिव समवन द टिप्स दैट देयर वाज रूम इनसाइड. वो दौड़कर लोगों को बताता कि नीचे जगह है, नीचे रूम खाली है, आ जाइए करके. डीलिंग विथ ओल्ड पीपल. बूढ़े लोगों के साथ कैसा बर्ताव था. ही वॉज एज कंसिडर्ड एज अ सन. वैसा बर्ताव किया करता था जैसे वो खुद उनका बच्चा हो या उनका बेटा हो. डीलिंग विथ चिल्ड्रन. बच्चों के साथ कैसा सलूक था. ही वॉज एज सॉलिटस एज फादर. वो इतना नरमी से बर्ताव करता था जैसे कि उनका बाप हो, दयालु था.
डीलिंग विथ यंग पीपल, नौजवानों के साथ, ही इंडल्ज्ड इन सम मेरी जेस्ट विद देम, वो उनकी हंसी मजाक में शामिल हो जाया करता था। डीलिंग विथ अ ब्लाइंड मैन, अंधों के साथ कैसा सुलूक था। ही वुड कॉल टू द बिल टू वेट फॉर he would call to the bill to wait for setting the blind man down safely on the pavement. वो ड्राइवर को कहता कि रुक जाइए ताकि वो उसको सही जगह पर अंधे आदमी को पहुंचा सके। डिस्कस एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस ऑन द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ द गुड मैनर कंडक्टर। गुफ्तगू कीजिए और लिखिए रहमदिली और अच्छे मिजाज का असर सोसाइटी पर अच्छे अखलाक रखने वाले कंडक्टर की रोशनी में। कंडक्टर के जो अच्छे अखलाक थे उसकी रोशनी में सोसाइटी पर रहमदिली और अच्छे मिजाज का कैसा असर होता है लिखना है और इस पर गुफ्तगू भी करना है। इसका जवाब इस तरह होगा, गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट नॉट ओनली इन द इंडिविजुअल लाइफ बट आल्सो ऑन द सोसाइटी। द क्वालिटी ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस आर इन्फेक्शियस, दे इन्फेक्ट वन टू अदर्स एज बैड मैनर्स इन्फेक्ट। Good temper clears up our society and make our day fine. If we are an honor of good temper and kind, we shall receive the same in return. The polite conductor had always fine weather on bus, having good temper and kindliness. He lightened his job by lightening the passenger spirit. A modest calling can be made dignified by good temper and kindly feeling. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। छोटे से पेशे को भी इज्जत हासिल हो सकती है अच्छे मिजाज और रहमदिलाना एहसास के ज़रिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, मिसाल के ज़रिए इस बयान की तशरीह कीजिए। चलिए एक्सप्लेन करते हैं और मिसाल भी देते हैं। वी कैन डिग्निफाई आवर प्रोफेशन रेंडरिंग गुड मैनर्स वेदर इट इज़ मॉडेस्ट। गुड मैनर्स मेक आवर प्रोफेशन प्लीजेंट एंड इम्प्रूवेबल। हैविंग पोलाइट गेस्चर्स and attitudes, we can conquer the heart of the people. I know an auto rickshaw driver whose nature is very good. He is famous for his goodness. He always welcomes the passenger enthusiastically and help them unloading the luggage. The service of the police is necessary for the implementation of law in our society. Do you think you require this service for good social environment? Discuss. पुलिस की खिदमत ज़रूरी है कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सोसाइटी में। क्या आप सोचते हैं कि आपको ज़रूरत है सोशल इन्वायरमेंट के लिए भी खिदमत ज़रूरी है? द सर्विस ऑफ द पुलिस इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन आवर सोसाइटी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस फॉर गुड सोशल इन्वायरमेंट। इट क्रिएट्स द थ्रेट ऑफ लॉ अमंग द पीपल. So people are very effective in reducing violence and safeguarding the people's life and property. But they can't compel the people for civility. They can protect the people from violence, but they can't dispose them for adopting courtesy, saying please and thank you. A3 में हम कोलोकेशन सीखने जा रहे हैं और कोलोकेशन होता क्या है और उसके मायने क्या है। इसे उर्दू में कहते हैं तरतीबी अल्फाज, यानी पहलू बा पहलू अल्फाज, साथ साथ आने वाले अल्फाज। ही कमिटेड द क्राइम इन ब्रॉड डे लाइफ, नॉट ब्राइट डे लाइफ और नैरो डार्कनेस। उसने दिन दहाड़े जुर्म किया। ब्रॉड के साथ डे लाइट इस्तेमाल हो या डे लाइट के साथ ब्रॉड इस्तेमाल हो, देखिए आगे। आई हैड अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, टी के साथ स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होता है, नॉट रिच टी। द फास्ट ट्रेन इज कमिंग, नॉट क्विक ट्रेन। हम क्विक ट्रेन नहीं बोलेंगे बल्कि फास्ट ट्रेन बोलेंगे। सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैबिचुअली ऑकर टुगेदर एंड देयर बाय कन्वे मीनिंग बाय एसोसिएशन आर कॉल्ड कोलोकेशंस। ऐसे अल्फाज या ग्रुपी अल्फाज जो अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, ऐसे अल्फाज को कोलोकेशन कहते हैं। A collocation is a combination of words in a language that often go together. जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल होते हैं, ये ग्रुप का मजमुआ होता है, अल्फाज के ग्रुप का मजमुआ होता है। Point out the words in column B which
कोलोकेट विद द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए को कॉलम बी से जोड़ना है। जो वर्ड्स कोलोकेट करते हैं एक दूसरे के साथ यानी तरतीब के साथ इस्तेमाल होते हैं, ऐसे अल्फाजों को एक साथ रखना है। यहाँ पर हम सही जोड़ियाँ लगा चुके हैं। रेगुलर, एक्सरसाइज, मिड डे मील, की कंसेप्ट, फास्ट फूड, ट्राई हार्ड, richly decorated, free time, traffic jam, social justice, wild animal. Learning collocations is essential for making your English sound fluent and natural. Make collocations and use in your own sentences. अंग्रेजी को फ्लुएंट और नेचुरल बनाने के लिए कोलोकेशन सीखना ज़रूरी है, इसलिए अपना खुद का कोलोकेशन बनाइए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ 2 एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको कोलोकेशन बनाना है और अपने खुद की जुमले बनाकर फतेह ग्रुप में पोस्ट करना है। बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, बिग हाउस, बिग डील, बिग बजट, बिग ड्रीम, बिग सिटी, बिग अमाउंट। वेल ड्रेस्ड, वेल बिगन, वेल डेकोरेटेड, वेल डन, वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर, वेल नोन, वेल मैनर्ड। आप ज़रूर इनको जुमलों में इस्तेमाल करके पोस्ट कीजिए फतेह ग्रुप में। Sometimes while using a word in a sentence, we have to change its word class. We can make several more words from the root word. We can make several more words from the root word. We can make several new words from the root word. जुमलों में अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त हमें वर्ड क्लास तब्दील करना होता है। वर्ड क्लास कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हम रूट वर्ड से कई वर्ड्स बना सकते हैं और रूट वर्ड से कई नए वर्ड्स बना सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दी गई है। आई आस्क्ड सुमित टू ब्लैंक माई पेंसिल फॉर मी। यहाँ पर शार्प वर्ड दिया गया है और इस ब्लैंक में, इस खाली जगह में हमें शार्प का सही फॉर्म भरना है या शार्प का सही पार्ट्स ऑफ स्पीच भरना है, तो ये वर्ब होगा, यानी इसको इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। तो इस तरह जुमला होगा, आई आस्क्ड सुमित टू शार्पन माई पेंसिल फॉर मी। तो शार्प एक रूट वर्ड है, इससे बना शार्पन। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। चेंज द वर्ड क्लास एंड रीराइट द सेंटेंसेस। लीना वाज ईटिंग अ वेरी एप्पल एंड ऑब्वियसली इंजॉइंग इट। यहाँ ब्रैकेट्स में क्रंच दिया हुआ है, तो आपको इसका लिखना पड़ेगा क्रंची। लीना वाज ईटिंग अ वेरी क्रंची एप्पल and obviously enjoying it. B. The picture looks, ब्रैकेट्स में दिया गया कलर, यहाँ लिखेंगे हम कलरफुल। The picture looks colorful. I am afraid that your behavior is just not, यहाँ ब्रैकेट में दिया गया एक्सेप्ट, तो इसका होगा एक्सेप्टेबल। I am afraid that your behavior is just not acceptable. I like my elder brother. He is very helpful. यहाँ ब्रैकेट में हेल्प दिया गया है, उसका होगा हेल्पफुल। Complete the following table. Put a cross if a word class does not exist. टेबल को मुकम्मल कीजिए और अगर उसमें वर्ड क्लास मौजूद नहीं है तो उसको क्रॉस कीजिए। इसमें दिया गया है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। दिए गए अल्फाज का आपको वर्ड क्लास बताना है। 4 वर्ड क्लास बताना है आपको। एब्सेंस का वर्ब होता है एब्सेंट, एडजेक्टिव होता है एब्सेंट, एब्सेंटली। अलार्म, अलार्म, अलार्मिंग, अलार्मिंगली। एट्रैक्शन, एट्रैक्ट, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिवली। एबिलिटी, इनेबल, एबल, एबली। एडमायरेशन, एडमायर, एडमायरेबल, एडमायरेबली। एग्रीमेंट, एग्री, एग्रीबल, एग्रीबली। एप्लीकेशन, अप्लाई, एप्लीकेबल, एप्लीकेबली। अवॉइडेंस, अवॉइड, अवॉइडेबल, अवॉइडेबली। डिफरेंस, डिफर, डिफरेंट, डिफरेंटली. Register often refers to the degree of formality of language, but in a more general sense, it means the language used by a group of people who share similar work or interests, such as doctors or lawyers. रजिस्टर अक्सर ज़ुबान की रस्मियत की डिग्री का हवाला देता है, लेकिन आम सेंस में इसका मतलब वो ज़ुबान जो लोगों के ज़रिए इस्तेमाल होती है
जो अपने इंटरेस्ट और वर्क को शेयर करते हैं, जैसे कि लॉयर और डॉक्टर। रजिस्टर का मतलब होता है कि इंसान को देखकर, उसकी स्टेटस को देखकर उससे बात की जाए, उसकी उम्र के लिहाज से बातचीत की जाए, छोटों से मुताबिक, बड़ों के मुताबिक। इमेजिन दैट योर प्रिंसिपल और टीचर इज कमिंग। व्हेन यू मीट हिम यू वुड नेवर से हे ड्यूड व्हाट्स अप। तसव्वुर करो कि आपके उस्ताद या प्रिंसिपल आ रहे हैं, और जब आप उनसे मिलते हो तो आप इस तरह नहीं कहेंगे, हे ड्यूड व्हाट्स अप। दिस इज़ अ फॉर्मल सिचुएशन, सो यू वुड से गुड मॉर्निंग सर। आपको गुड मॉर्निंग कहना पड़ेगा। इन एवरी सिचुएशन यू यूज़ एन एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द पर्सन। हर सिचुएशन में आपको मुनासिब एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना पड़ता है इंसान के मुताबिक। द लैंग्वेज यू यूज़ व्हेन यू मीट समवन डिपेंड ऑन देयर एज, पोजीशन एक्सेट्रा। ज़ुबान आपको उसकी सामने वाले की उम्र और स्टेटस के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है। देयर आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रजिस्टर्स इन स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। रस्मी और गैर रस्मी रजिस्ट्रेशन बोलने में आती है, तहरीर में आती है। देखिए, राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स विच यू हैव टू यूज़ व्हाइल फेसिंग एन इंटरव्यू। मुनासिब एक्सप्रेशन और अल्फाज लिखना है जो आप इंटरव्यू में इस्तेमाल करते हैं, इंटरव्यू फेस करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। वन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर, मे आई कम इन सर, इट्स माई प्लीजर सर, could you repeat that please? I promise to give my best if I am given an opportunity. Thank you very much sir. You are writing a letter of complaint. List the proper expression that you would like to write. आप एक शिकायती लेटर लिख रहे हैं तो आपको ख़ास एक्सप्रेशन की फहरिस्त बनाना है जो आप लिखना चाहेंगे। One example is given here. I disagree. I want to bring this in your notice that please look into this matter, solve the problem. I solicit you that I expect you that you will do in favor of us. Distinguish between a legal offense and a moral offense on the basis of the given text. आपको फ़र्क बताना है लीगल ऑफेंस में और मोरल ऑफेंस में, टेक्स्ट के मुताबिक, सबक के मुताबिक। तो लीगल ऑफेंस है बर्गलेरी, थेफ्ट, असॉल्ट, रैप, मर्डर। ये लीगल ऑफेंस है, इसमें आपको सज़ा होनी है, पनिशमेंट होना है। और मोरल ऑफेंस में पनिशमेंट नहीं रहती है। तो रूड बिहेवियर, इंसल्ट, डिसकर्टेजी, नॉन कोऑपरेशन, ये मोरल ऑफेंस है। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ फॉलोइंग फ्रेजेस, यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। मंदरजाल फ्रेज की मायने बताइए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ए, गिव एंड टेक, एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, स्टेटमेंट्स, गुड एंड प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, गिव एंड टेक ऑकर्स इन एवरी निगोशिएशन। लेन देन का मामला हर बातचीत में होता है। अ ब्लैक आई, एन एरिया ऑफ स्किन अराउंड द आई that has gone dark because it has been hit. आँख पर मार लगना। He got a black eye in the fight. उसकी आँख काली हो गई या उसकी आँख पर मार लग गया लड़ाई में। Lower than an angel means less than perfect. You have made him a little lower than an angel. Knock someone down means to cause to topple or fall over. किसी को गिरा देना या गिर जाना। बी केयरफुल व्हेन ओपनिंग द डोर्स, टू फास्ट एंड यू माइट नॉक समवन डाउन बिहाइंड यू। फाइंड आउट द वर्ड्स विथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। किताब से इस सबक से हमको सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस निकालना है और उन्हें लिखना भी है। एग्जाम्पल दी गए अनसिविल, रिक्वायरमेंट। प्रीफिक्स में हम लिखेंगे डिसएग्रीबल, अनयूजुअली, इल मैनर्ड, डिसकर्टेजी। और सफिक्स में लिखेंगे
resentment, instruction, benediction, cheerfulness. Complete the table with polite expressions that we must use in our day-to-day life. टेबल को कंप्लीट करना है पोलाइट एक्सप्रेशंस के साथ, जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्सप्रेशंस को लिखना है। अब कौन से एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करना है और उसकी बजाय कौन से करना चाहिए, ये डोंट्स और डोज बताता है। डोंट्स में ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और डोज में इसकी बजाय ये बोलना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दी गई यहाँ पर, आई वांट अ कप ऑफ टी। इस तरह ना कहते हुए आपको इस तरह कहना चाहिए, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। सेंड मी द मेल, कुड यू प्लीज सेंड मी द मेल। गो अवे और लीव मी अलोन, चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इस तरह ना कहते हुए आपको इस तरह कहना चाहिए, आई एम लिटिल बिजी, प्लीज लीव मी अलोन। यू आर रॉन्ग, ये ना कहते हुए आई थिंक यू माइट बी रॉन्ग, दैट्स अ बैड आइडिया, आई एम नॉट श्योर दैट इज गुड आइडिया। योर वर्क इजंट गुड, इस तरह ना कहते हुए योर वर्क नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। एडिट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग ए एंड द वेर यूर नेसेसरी। आपको सही आर्टिकल इस्तेमाल लिखना है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कहाँ क्या आएगा, और वैसे इसमें अंडरलाइन भी की हुई है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। राकेश इज एन आइडियल सन हु रिमेन्स डिवोटेड टू हिज फादर as he grows professionally to become a famous doctor. As his father grows old, he takes care to spend time with his father, bringing him tea in the morning and taking him out for a walk in the evening. I hope that you understood the proper using of article. Spot the errors in each of the following sentences and correct the incorrect ones. गलती को दरियाफ्त करना है और सेंटेंस को दुरुस्त करके लिखना है। यहाँ पर प्रीपोजिशंस सही तौर से भरना है हमें। राधा ब्रॉड पेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हर 5 चिल्ड्रन। यहाँ पर बिटवीन इस्तेमाल किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर अमंग इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि बिटवीन 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर 5 आ गया है, यानी 2 से ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ अमंग इस्तेमाल होगा। अमंग हर 5 चिल्ड्रन। राधा ने 5 बच्चों के दरमियान पेन्स तकसीम किए। जयश्री एंड सुजाता सेट बिसाइड्स ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस। यहाँ पर बिसाइड्स इसके मायने होते हैं के अलावा, जबकि यहाँ पर बिसाइड होना चाहिए था, यानी के बाजू खामोश बैठे हैं सुजाता और जयश्री एक दूसरे की। His best friend विजय was blind within one eye। यहाँ पर in one eye होना चाहिए था, यानी एक आँख का अंधा होना। विदिन तो एस्टिमेट और बाउंड्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी विदिन 2 days, विदिन द बॉक्स, या इसके मानी करीब की भी होते हैं, विदिन द रीच, विदिन वंस रीच वगैरह। वन कुड डेयर टू इंक्रोच ऑन हिज राइट्स। इंक्रोच अपॉन के मायने होते हैं दखल देना। हमने एक दूसरे के हमने उसके हुकूक में दखल नहीं देना चाहिए। यहाँ पर होते हैं वन कुड डेयर टू इंक्रोच ऑन हिज राइट्स। तो यहाँ पर ऑन की बजाय अपॉन होना चाहिए, क्योंकि इंक्रोच अपॉन के मायने होते हैं दखल देना किसी के, और इंक्रोच अपॉन वंस राइट्स किसी के हक में दखल अंदाजी करना। शी वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन शी सॉ द फेमस ताजमहल। तो देखिए यहाँ विथ इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाय इस्तेमाल होना चाहिए। शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज द गुड्स वंस द सेल हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ वंस की बजाय आफ्टर होना चाहिए कि मुकम्मल तौर पर बंद होने के बाद चीज़ें अदला बदली नहीं हो सकती। डॉक्टर सेन गुप्ता हैज़ बीन ट्राइंग टू मास्टर द क्राफ्ट फॉर द लास्ट 5 years।
ये जुमला बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सी जगह पर यहाँ पर लोगों ने सीन्स कर दिए हैं, ये जुमला सही है। यहाँ पर तादाद है तो इसलिए यहाँ पर फॉर ही इस्तेमाल होगा। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड, यहाँ पर इनकी बजाय फॉर इस्तेमाल होना चाहिए। अपॉइंटेड फॉर सीनियर जॉब्स इन बैंक्स। शी नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर बट शी इज़ अनेबल टू परफॉर्म। ये जुमला इस तरह होना चाहिए, शी नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर। फ्रॉम की जगह फ्रॉम की बजाय ऑफ इस्तेमाल होना चाहिए। दे विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिड्रेशन। ऑन की जगह अप इस्तेमाल होना चाहिए। दे विल पुट अप अ नोट एक्सेट्रा। Convert these sentences into passive voice by filling in the blanks. The first sentence has been done as an example. Firstly, the monitor, keyboard, and printer were linked up. Then, मैं आपको यहाँ पर खाली जगह भरकर बता दे रहा हूँ कि पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं। आप इसे लिख लीजिए और फतेह ग्रुप पर पोस्ट कीजिए। तमाम एक्सरसाइज को आपको फतेह ग्रुप पर पोस्ट करना है। Then the main cable was plugged in. The monitor was switched on at the back. When the light appeared on the screen, the day disk was placed in drive A. The disk was pushed until the button clicked out. It took the computer 30 seconds to load the program. The drive button was pressed and the disk shot out. The day disk was replaced with the document disk. Finally, the function key 7 was pressed. The word processor was then ready to use. Write a speech on courtesy is the light of life with the help of the following points. एक स्पीच लिखना है कि ज़िंदगी की रोशनी, अखलाक ज़िंदगी की रोशनी है और ये पॉइंट्स उसमें आना चाहिए। पीपल हैव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ यू, यू विल बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल, यू विल बी हैप्पियर एंड कंटेंटेड विथ लाइफ। तो मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए और फतेह ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स, friends and all dignitaries and luminaries on the stage. I am Abair Khan. Today I am going to deliver a speech about courtesy is the light of life. Courtesy is very important in our life. It makes our identity good. Just as clothes shines our body, so as courtesy does our personality in the society. When you are courteous, people have a good impression of you. Dear friends, nothing is counted in the society except for your courtesy and manners. Having good manners and courtesy, a person is highly appreciated and acknowledged by the people. The more manners you have, the more respect you will have. People will like to talk to you, to company with you, to do business with you. Your light of manners will enlighten the surroundings and remove the darkness of disappointment, miseries, and sorrows. The one thing I am going to tell you that just as flowers make the garden, likewise manners make the man. Man can't be called man without manners. And the last thing I want to say you that courtesy, manners are the integral part of Islam. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the holistic embodiment of manners. Therefore, we must follow him and be a part of humanism. Thanks to honor to provide opportunity to say about courtesy is the light of life. इस स्पीच को लिखिए और फतेह ग्रुप में पोस्ट कीजिए। Manners maketh man. Expand the ideas in your own words with proper example. अखलाकी इंसान को इंसान बनाते हैं। इस आइडिया को एक्सपांड करना है, बयान करना है और उसकी एग्जाम्पल भी देना है। Manners maketh a man. It means that a person may be judged according to his behaviors towards the people. Manners are an essential
prerequisite for a good character. We have good manners because of good bringing and good education. These two things, upbringing and good and education, teach the man differentiation between good and bad. A man is molded by manners in good human being. We know of Hitler, who because of troubled childhood and bad experiences with Jews became such tyrant in history. The background of most 100 criminals also reveals an unhappy and sad childhood that affects their character and consequently their manners. Thus, manners play a vital role in man's life without which he can never be a complete man in the true sense of the word. Thus, we can say that manners maketh a man. Read A.G. Gardiner's essay, The Open Window, and compare its theme with the essay on Sing Please. Answer. In On Sing Please, A.G. Gardiner points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. Whereas Open the Window is different from the essay on Sing Please. The main theme is the open window are appearance, whereas appearance versus reality, the discomfort of company and the suspension of disbelief. Appearances versus reality, whereas stories present false appearances, concealing the reality behind them and causing great misunderstanding for Frampton. Nothing clears my spirit like a fine day. Keats. Collect the information of the poet Keats and write in your notebook. John Keats was born in 31 October 1795 in London. He died in 23 Feb 1821. His father was an innkeeper. He was the greatest English romantic lyrics poet who devoted his short life to the perfection of poetry maker by vivid imagery, great sense of appeal, and an attempt to express a philosophy through classical legend. John Keats wrote sonnets, odes, epics. All his greatest poetry was written in a single year, 1819. Limia, the Eve of Saint Agnes, the Great Odes, and Indolence on a Grecian urn, to Psyche, to a Nightingale, on Melancholy, and to Autumn, and the two unfinished versions of an epic on Hyperion. तो ये था हमारा पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर नोटबुक में लिखकर फतेह ग्रुप में पोस्ट करेंगे। इसके बाद हम पोएम शुरू करेंगे और उस पोएम में कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।